چیز بس کرنی ہے، تو یہ اس کو تھکاوٹ کہتے ہیں. اور جو مقصد تھکی تھکی رہنے سے کی وجہ، کبھی کبھی تھکاوٹ میں بھی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں مگر وہ پھر بھی تھکے ہوتے ہیں. وجہ ڈھونڈنا ہوتا ہے، وجہ کیا ہے یہ ضروری ہوتا ہے، وہ خود شخص تشخیص کر سکتا ہے. مالش کے پاس تو اگر تھکاوٹ ہے لازمی جانا چاہیے، ٹھیک ہے، مالش کے پاس لازمی جانا چاہیے. اگر میڈیکل ڈاکٹر نہ سمجھے تو سائیکولوجسٹ کے پاس جانے چاہیے، کاؤنسلنگ سے وہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ آپ کو پرابلم کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب دیکھیں، جیسے کہ ہم نے وجوہات پہ بھی بات کی، علامات کیا ہوتی ہیں، لیکن اس کے ہماری زندگی پر اثرات کیا ہوتے ہیں کاہلی اور سستی کی وجہ سے؟ کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے اثرات تو بہت پڑ سکتے ہیں. ایک تو ہماری باڈی ہے نا، کہ کاہلی سستی میں ہماری جو مسل ہے جی وہ ڈھیلی ہو جاتی ہے، جو ہے نا بالکل ایک فارم کی طرح ہو جاتے ہیں. اگر ہم کام کرتے ہیں، جتنا کام کرتے ہیں ہمارے جو مسلس ہے وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کے جو ہے نا یہ باڈی پہ یہ اثرات ہے. پھر باقی جو آپ کے کام، آپ کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس پہ برا اثر کر سکتے ہیں، آپ کے پریزنٹ پہ اثر کر سکتا ہے. کہ ایک شخص کے برے عادتوں میں سے یا بری تھکاوٹ میں جو وہ کرتے ہیں، تو وہ پتہ ہے کیا ہے کہ انہوں نے اب صبح ہے انہوں نے سو گئے، اب آنکھیں کھل گئے، دوبارہ پھر انہوں نے الارم کو آف کر دے، پھر سو گئے. یعنی یہ انسان کو تھکاوٹ کی طرف اس طرح حالات لے جاتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ڈاکٹر سے پہلے ان کی جی کالر شامل صحیح. کر دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے. جی احسان ملتان سے بات کر رہا ہوں. جی احسان، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری سانس جو ہے نا رک جاتی ہے، میں اعلیٰ جب چوکھا بولتا ہوں تو میری سانس رک جاتی ہے. سانس رک جاتی ہے؟ جی رک جاتی ہے، مجھے ایسے ہوکڑی چلنے لگتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھیں گے ان سے؟ گھبراہٹ ہوتے ہے آپ کو، سانس رک جاتے؟ گھبراہٹ ہوتی ہے آپ کو کیا؟ ہاں گھبراہٹ ہے مجھے، جو میرا جسم ہے وہ پورا کانپنے لگتا ہے، اچھا سانس رک جاتی ہے. تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا کیا اس کا کیا علاج ہے؟ جی بالکل صحیح. آپ کو بتا دیں، آپ کو ایسا ہے نا، آپ کو ابھی آن ایئر بتا دیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. ہاں یہ ہوتا ہے، یہ گھبراہٹ اور یہ انزائٹی ہو سکتا ہے آپ کو. تو آپ اس طرح کریں کہ اپنے آپ کو تھوڑے میڈیٹیشن کریں، اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں، اور ضرور کسی مالج کے پاس جائیں. لازمی اپنے آپ کو چیک اپ ضرور کروائیں نا، تاکہ آپ کو اپنے، جب کہ انسان کو خود کو تسلی نہیں ہوتی تو وہ کوئی کیا نہیں ہوتا. تو یہ نیچرل طریقے سے ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح آپ اپنا علاج کریں اور کس طرح. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور جو یہ دیکھی جاتی ہے سستی اور کاہلی، وہ دیکھی جاتی ہے 6 سال سے لے کر 12 سال تک کے بچوں میں پڑھائی کے معاملے میں، کہ اس میں وہ سستی دکھا جاتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ؟ 6 سال کے 6 سال سے 12 سال تک کے جو بچے ہیں اس وہ میں پڑھائی کے معاملے میں سست ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے اس چیز کی، جس چیز سے آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ تھکاوٹ ضرور. آپ دیکھیں کبھی کبھی کوئی شخص کوئی تھکاوٹ محسوس نہ کرے. کیا زبردست بات آپ نے چھیڑے کیے. بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں سوچنا چاہیے. دیکھیں ہر انسان تجربہ کر سکتا ہے یہ چیز. اچھا. جس کام میں آپ کو انٹرسٹ ہے اس میں تھکاوٹ ہی فیل نہیں ہوتا ہے، اور جس کام میں آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے اس میں تھکے نہ بھی ہو تھکاوٹ محسوس ہوتا ہے. تھکے نہ بھی ہو لیکن پھر بھی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہوتی ہے. محسوس ہو رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھے ہوں گے نا، جی بالکل ڈاکٹر جس صاحب، کام بالکل میں اگر نارمل آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے، وہ کرنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا دلچسپی ہوتا. نہیں ہے، تو تھکاوٹ ہی محسوس ہوتا ہے نا وہ. بالکل بالکل صحیح بات ہے. اور یہاں پر انسان کو سوچنا چاہیے کہ بہت کچھ ہم نہیں سمجھتا ہے ابھی تک، بہت کچھ سمجھنا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے. سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں، اپنے سائیکولوجی کو خود سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی دنیا کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. بالکل، یعنی کہ اس میں ہم اپنے اس کام میں اپنی تھوڑی سی لگن بھی ڈالیں، اپنی دلچسپی ڈالیں گے دلچسپی تو ڈالیں، تھکن نہیں ہوگی. دلچسپی. اب دیکھیں بچوں کا ہے کہ آپ نے بچوں کی بات کی، بچوں کی دلچسپی ماں باپ یا والدین یا جو بھی لوگ ہیں وہ تھوڑے اس کے دلچسپی میں یہ کرے کہ مقصد ان کو ہمیشہ یہ سجیشن دیں، بچوں کو ہمیشہ یہ سجیشن دیں کہ مثال کے طور پہ بچے جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ اس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، تم نے آگے بڑھنا ہے، بہت بڑا ایک شخصیت بننا ہے. صحیح. آپ جو بھی انٹرسٹ ہے ان کے، انہوں نے کیا بننا ہے تو آپ نے یہ بنیں گے، پھر اس سے بات یہ بنیں گے، پھر یہ بنو گے. تو اس کے لیے کیا چاہیے بچے؟ اس کے لیے یہ ساری چیزیں جتنے بھی کھلونے شلونے، آپ پھر ایسے چیزیں ہوتا ہے بڑا چڑھا کے نا کہ آپ کیسے لائف ہوں گے.
आगे अभी से से उनका उसके इंटरेस्ट ज़हन डेवलप पे, करें। उसके एम में अभी बना दे सही। कि आपने एक अच्छा सा और अच्छा इंसान बनना और अच्छा बनना है अपनी लेकिन वो पढ़ाई के जरिए दुनिया बन में। सकते हो, सब हाँ, चीजें आप जब हासिल कर सकते हो। दुनिया में एक अच्छे और का चाहे मिसालें बताएं कि फलां की तरह ना आपने इस तरह की एक शख्सियत सही। बनना है। अच्छा डॉक्टर साहब, 15 साल ज्यादातर के बाद हीरो हीरो जो है ना लगने का उनको ज्यादा शौक होता है आजकल के जो बच्चे, ठीक, हीरो लगना ना बिल्कुल कि ये हीरो की तरह आप इस तरह हो, सुपरमैन की तरह फलां हो जाएगी, आप ऐसा ही ये हो जाएंगे। वो छोटे जो बच्चे हैं ना, जो समझदार है वो तो समझते हैं, तो उनको अपना एम बताना जरूरी होता है। अच्छा, यहाँ से उनका एम का भी यानी उनका जो जिंदगी का मकसद है गोल भी उनको मिल जाता है। उसका भी तयन हो गया ना, ठीक है। ये आपकी इस बातों से सर, सही और उनका दिलचस्पी भी बढ़ गई पढ़ने से। सही। यही वजह है, जो तकी नहीं होता है सिर्फ दिलचस्पी नहीं होता है उनमें। अच्छा डॉक्टर साहब, 15 साल से 25 साल के स्टूडेंट्स के दरमियान भी थोड़ी सी काहली और सुस्ती देखने में आई है, जबकि ये वाली एज तो थोड़ी सी समझदारी की भी हो चुकी होती है, थोड़ा सा इंसान समझ बूझ भी रखता है, तो फिर क्या वजह है 15 से 25 साल तक की जो उम्र है? 15 से 25 साल की उम्र में क्या होता है? मतलब उसमें भी ज्यादातर देखे जाते हैं कि थकावट। स्टूडेंट्स थकावट और सुस्ती और काहिली उनमें देखने में आती है, जबकि वो थोड़ा सा इस चीज का शिकार भी हो चुके होते हैं। और ये काफी सारी जो चीजें हैं, मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग अभी अपने आप को खुद भी नोटिस करें और देखें कि आप लोग वाकई थकावट फील करते हैं, जबकि ये यंग एज है, फील करते हैं या नहीं करते, तो डॉक्टर साहब आपको इस चीज का जवाब भी दे देंगे, जबकि ये समझदारी वाला टाइम भी है। सही तो है ना ये डॉक्टर, फिर समझदारी क्यों वाला फिर टाइम क्यों है, फिर सुस्ती? भी थकावट है। हाँ, फिर क्यों सुस्ती? हाँ, वजह यह है कि थकावट का आप कोई ना कोई वजह जरूर हो सकता है, लेकिन दिलचस्पी नहीं है। मैं सबसे ज्यादा थकावट का वजह जो है दिलचस्पी ना होना समझता हूँ। सही। अपने तौर पे आप आजमाएं, देखें, आप खुद देखें कि आपने एक काम के कभी बहुत थके हुए थे। एक मिसाल बताता हूँ ना, एक किताब में लिखे, मैंने पढ़ा, एक तजरबा है। एक लड़की है, हमेशा थकी हुई, बहुत थकी हुई, जब भी घर आ जाती है ना, कहीं जॉब करती है, घर जब आ जाती है ना, तो वो जो है ना अपने वहां से बस ऐसे डिप्रेस होती है सुबह तक, सुबह फिर जाना होता है उसने, तो वो वहां पर कोई काम भी नहीं करते कि मैं जॉब करके आती हूँ, मैं बहुत थकी होती हूँ, मेरा तो ये होता है वो होता है, हमेशा शिकायत और जिला जिला से रहती है। एक दिन वो उसी तरह उसी थकावट में आ गई और फिर वही कैफियत है, वही मनफी बातें हैं, तो जो है ना अजीब गरीब से तोड़ फोड़ भी उस दिन थोड़ा सा कर दी उसने कि ये जो है ना, ये देखे, ये मैं थकी हुई, ये सर मर रही हूँ फलां। एक सहेली के उनके कॉल आई उसी वक्त, अच्छा, उसी कैफियत में कि आज तो जो है ना, आज फलां के जो है ना शादी है और आज आपने आना है, बड़ा अच्छा फंक्शन है। वो एकदम तरोताजा हो गई ना, एकदम से फौरन जाके उसने तैयारी की, 2 घंटे में वो तैयार हो गई। ओह माय गॉड। अच्छा, 2 घंटे में ना, वो पहले वो चीजें मांगते थे अपने अम्मी से, बहनों से, भाइयों से, ये ले आओ वो ले आओ, इस तरह के वो रख लेते उनके लिए। और वो जो है ना, कोई किसी को कहते मेरे पाँव दबाओ, किसी को कहते सर दबाओ, ऐसा तकी हुई हूँ फलां ये वो। अब उस दिन ना तो उसने कुछ खाया पिया कुछ नहीं, यूं निकली बस 2 घंटे तैयार हो गई, फ्रेश, बिल्कुल एक्टिव हाँ, होके। एक्टिव, और वो एकदम एक्टिव हो गई। अच्छा, वो चले गए और वो पूरा रात 3 बजे तक उन्होंने यानी वो फंक्शन को अटेंड किए। 3 बजे के बाद घर आई और सुबह वो 8 बजे उठे। पहले वो सो जाती थी, कोई मेरे ख्याल कोई 8 घंटे 9 घंटे सो जाती थी, सही, ठीक है। और उस दिन जो है 2 घंटे, सिर्फ 2 के 3 घंटे सोई और फिर काम पे गई और वो पूरा दिन उसका फ्रेश रहा, तरोताजा क्योंकि रहा। उस काम में उसकी दिलचस्पी थी। अच्छा, उसने खुद तजर्बा किया है, उसने खुद तजर्बा किया है कि देखे, अगर जॉब में हम खुद यानी दिलचस्पी किसी भी चीज में अगर नहीं लेंगे तो वो इस तरह के हो जाते हैं। यानी वो एक दिन से उसकी वो सारी थकावट
महीनों की खत्म हो गई। अच्छा बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी चीज के लिए बड़े बोर हैं, घर में बैठे हैं, किसी से बात नहीं करे, घर वाले भी कहते हैं ये क्या है, तुम थके हुए आए हो, ये कुछ है, कहते बस थके हुए हैं, अभी बात नहीं करो, अभी बात करने का भी दिल नहीं चाह रहा। लेकिन अगर हमारी किसी बहुत अच्छी दोस्त की कॉल आ जाए तो हम उसे घंटों फोन पे भी लगे रहेंगे, कोई थकावट नहीं, कोई चीज नहीं। तो वही बात फोन पे, हाँ, जितने बात करते हैं घंटों फोन पे बात करते रहे, कोई थके नहीं। बल्कि वो तरस रहे होते हैं कि कब कॉल आएंगे ना। हाँ, कंप्यूटर पे बैठे हैं तो घंटों बैठे हुए, कोई थकन नहीं। एक बात मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। दिलचस्पी किसी चीज में सबसे बड़ा मैं ये समझता हूँ कि दिलचस्पी किसी चीज में ना लेना थकावट के बायस बनते हैं। ठीक है। अब एक बात है कि आप टीवी लगाएं, तकरीबन उसी टीवी को आप देख रहे होते हैं 4 घंटे, कभी बैठ जाते हैं इंसान, कभी 6 घंटे, 6 घंटे भी देख रहा है। ऐसा लोग हैं जो 12 घंटे देखते हैं टीवी। यकीन माने 12 घंटे मुसलसल। अब आपके अगर इंडियन मूवीज है या पाकिस्तानी तो वो 3 घंटे के होते हैं ना, तो बीच में ब्रेक्स को हिसाब करके तो वो 3, बिल्कुल, हाँ, तो मेरे ख्याल में ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, अब एक मूवी देखे, उसने दूसरे देखे थे, 4 मूवी एक दिन में देखे तो 12 घंटे हो गए। ठीक है, 4 मूवीज अगर उन्होंने देखे, बल्कि ज्यादा घंटे हो गए, 4 मूवीज उसने देखने। अब 4 मूवीज में देखे जो है ना, या 3 मूवीज में अगर देखते हैं तो 12 घंटे बन जाते हैं। 3 मूवीज तो देखते रहते हैं लोग। तो आप 3 घंटे के लिए उन्होंने एक स्क्रीन को देखा। अब आजमाने के लिए थोड़ी देर के लिए आप टीवी बंद करें, उन्हें कह दे इसी स्क्रीन को देखता रहना। आप लोग अभी मत कीजिएगा, बात नहीं कीजिएगा डॉक्टर साहब, कॉलर हमारे साथ। 5 मिनट भी नहीं देख सकेंगे। 5 मिनट अजीब ही हाल हो जाएगा। और वही सुस्ती और काहिली आपने कहा आज कैसे ना लेना। देखिए लॉजिक के साथ समझा रहे हैं, कोई एक लॉजिक है पूरी बातों में, आपकी समझ वाली बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना नाम बताइए। ये तारिक बोल रहा हूँ जी, कराची से। ओके तारिक साहब, क्या पूछना चाहेंगे? हमदा हीलिंग एनर्जी में ये ब्लड प्रेशर, शुगर और किडनीज का इलाज मौजूद है कोई? ओके, हमारे रिलेशनशिप पे क्या असर डालती है? रिलेशनशिप पे हमारे कायली सुस्ती बुरा असर करते हैं, सब चीज़ पे करता है, जिंदगी के हर पहलू पे करते हैं। यानी हमें हर चीज़ को दिलचस्पी बढ़ाने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, एक तरह के हमें ये समझने चाहिए दिलचस्पी को बढ़ाने के लिए कि ये एक फ़र्ज समझते हुए, एक चीज़ को एक ज़रूरी समझते हुए, उसकी बेनिफिट्स को लिखते हुए, ज़रूरी है कि आप बेनिफिट्स उसके लिखें और वो बेनिफिट्स आप जो है ना अपने पास हमेशा रखें या अपने सामने लगा दें, बेड के सामने लगा दें, बेडरूम में या किसी भी जगह पे आप लगा दें। जो बेनिफिट्स है उस चीज़ की, जो चीज़ आप करना चाहते हैं, उस गोल जो अचीव करना चाहते हैं, उसके बेनिफिट्स का हमें पता हो, हमें ये वाज़ेह हो, पता वाज़ेह हो, बावजूद के जहन में होती है कुछ चीजें ना, मगर लिखना जरूरी होता है ताकि आपके बार बार नजरों के सामने भी वो चीज आती रहे। वाज़ेह हो कि आप सामने रखिए उस चीज को, लिख लें और सामने रखे, बार बार याद आते रहेंगे। और अगर कोई अनपढ़ है तो वो जहन में रखे कि इसके बेनिफिट्स ये चीज। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बिजनेस में अगर सुस्ती और काहिली से काम ले लिया जाए तो फिर उसके क्या नुकसान हो सकते हैं? ज़ाहिर है बिजनेस तो तबाह हो सकता है, तबाह हो जाएगा, ठप हो जाएगा पूरा काम। ज़ाहिर है कायले सुस्ती करेंगे तो एक बिजनेसमैन तो बड़ी मेहनत करते हैं, अच्छी प्लानिंग्स करते हैं, मीटिंग्स होती है, और अगर कायली सुस्ती तो घर पे इंसान पड़ा रहेगा और वो फिर अपने बिजनेस तो ज़ाहिर है उसमें लॉसेस तो खतरा है उस चीज़ का। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या सुस्ती और काहिली से वजन भी बढ़ सकता है? बहुत बढ़ते हैं, क्योंकि हम जो काहिल सुस्त होते हैं तो उस सूरत में हमारे वजन बढ़ता जाता है, क्योंकि ऊपर से आप खा रहे हैं, ठीक है, आप ऊपर से खा रहे हैं, कैलोरीज इतने जो है ना ज्यादा वो नहीं बर्न नहीं हो रहे, ठीक है। आप जो है ना उसको आप कैलोरीज लेते हैं, आप जितने भी चीजें लेते हैं उसको बर्न करने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। तो आपके फिजिकल मूवमेंट से, आपकी मेंटली मूवमेंट से सारा कुछ करना होता है, तो फिर उस सूरत में आप मोटे नहीं होंगे और आगे बढ़ते हैं, इंसान थकावट के शिकार नहीं होते। दिलचस्पी लेना चाहिए हर चीज़ में, तो खुद ही काम पैदा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि ये जो सुस्ती और काहिली की वजह से हमारी मतलब बॉडी में जिस्मानी और नफ्सियाती जो मसाइल पैदा होते हैं वो क्या हो सकते हैं?
किस किस्म के मसाइल पैदा हो सकते हैं? देखिए हमारे वजन बढ़ सकता है तो वो एक बहुत बड़ा वजन बढ़ मसला सकता है। है, सही। वजन हो सकता है बढ़ जाए और इससे। उससे तो और काफी सारी हाँ। बीमारियां आ सकती हैं। और फिजिकल प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हो सकता है आपके, क्योंकि हमें बॉडी के मूवमेंट्स चाहिए ना, ठीक है। हमेशा कुछ मूव करना, चलना फिरना घूमना, ये अच्छा होता है हमारे बॉडी के लिए, अच्छे होते हैं। अगर आप मिसाल के तौर पे ऑफिस जाते हैं तो कई